स्वागत है आप सबका हमारे चैनल मॉक टॉक पर। आज हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बीपीएससी टीआरई 1 में क्लास 6 to 8 के लिए जो इंग्लिश का पेपर हुआ था वो पेपर लेकर आए हैं। तो जिस भी बच्चों का सब्जेक्ट अगर इंग्लिश है तो मेक श्योर वो इस वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे पहले वीडियो शुरू होने से भी पहले आप हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो पर अपना प्यार दिखाइए। तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से पहले इस कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ लीजिए। थोड़ा बड़ा है, टाइम लेके पढ़िए, क्योंकि सिर्फ ये पढ़ने से ही आपका देख रहे हैं कितने सारे प्रश्न हल हो जा रहे हैं। 28 के आसपास प्रश्न हल हो रहे हैं। हम लोग सीधे प्रश्न पर आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है वाई वॉज द ग्रैंड मदर लिस्टलेस दैट नाइट। तो इसका उत्तर है, ऑप्शन देखिए, शी वॉज अनवेल, शी वॉज टू ओल्ड, शी वॉज एंग्शियस, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है दोस्तों सी। आंसर है इसका शी वॉज एंग्शियस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द बेस्ट कैन वन डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी टेलर। ऑप्शन गैरिलियस एंड cantankerous old woman, cheerful and lively old woman lady, indolent and grumpy old lady, D या फिर E। तो इसका आंसर होगा दोस्तों B, cheerful and lively lady। नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the term hearth fire indicate? ऑप्शन fireplace, stove, grate, D या फिर E। तो इसका आंसर होगा दोस्तों A, that is fireplace। Next question, what was so special about that night? Options, it was a stormy night with incessant thunder and rain. It was that fateful night when a peculiar wind blew. It was a silent night when the moon had lurid glow. D or E? So the answer is B, that it was that fateful night when a peculiar wind blew. Next question, what is the trajectory that the song takes in this story? Option, the song arises from the graveyard filling the whole village and disappears beyond human habitation. Next option, the song arises from the graveyard filling the whole village with good cheer and dissipates into nothingness. Option third, the song arises from the graveyard filling the whole village with sadness and fades away gradually. D or E? So the answer is A, that the song arises from the graveyard filling the whole village and disappears beyond human habitation. Next question, why do listeners gather to hear stories at night in remote villages upon the hills of northeast India? Option, they are engaged in factories and offices during the day. They are engaged in their farms, collection of firewoods and water and other mundane affairs. They are engaged in the textile and mining industry. D or E? The answer is B, that they are engaged in their farms, collection of firewood and water and other mundane affairs। ठीक है, थोड़ा बड़ा लग रहा होगा बट बहुत ईजी है। ये मत सोच के छोड़ दीजिए कि इतना बड़ा कौन पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा। देखो बहुत इजी है कॉम्प्रिहेंशन नहीं छोड़ना चाहिए। अगला सवाल देखिए, पिक आउट सिनोनिम फॉर द वर्ड रिब्यूक फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। ऑप्शन चेस्टाइज्ड, एजिटेटेड, रेविज्ड, डी और ई। तो इसका आंसर है ई, दैट इज नन ऑफ द अबव, बिकॉज सी chastised was in the comprehension but it is not the synonym of rebuke. Point to be noted। ठीक है, chastised मतलब होता है like punished or scolded, not rebuke। ठीक है, तो next question देखिए, which word in the story indicates supernatural elements? Option eerie, uncanny, uneasy, D or E? So the answer is D, more than one of the above, क्योंकि both eerie and uncanny right indicate supernatural elements। Next question, describe the look on the storyteller's face when they all clearly hear the tune of the song। Option stunned, alive and animated, puzzled, D or E? The answer is B, alive and
unanimated. Okay, not unanimated but animated. Next question, how would you describe the listeners? Option, as casual and irresponsible, as carefree and light-hearted, as polite and considerate, D or E? Answer is E, none of the above. See, they are young student visiting for winter holidays, initially skeptical and inattentive. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, what is the role of the storyteller in Naga society? Option, a bearer of traditional lore, a bearer of history, a bearer of truth, D or E? The answer is D, more than one of the above. See, bearers of traditional lore, history and communal memory, truth. ठीक है, लिखा हुआ है ऊपर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which colloquial word is an equivalent of the term grandmother that has been used in the extract? Option, grandma, granny, matriarch, D or E? Answer is B, that is granny. अगला क्वेश्चन, why does the storyteller feel that the youngsters of today have forgotten how to listen to the voice of the earth and the wind? Option, as they are skeptical, as they are inattentive, as they are disbelievers, D or E? Answer is D, more than one of the above. They are skeptical and they are inattentive. Next question, what is the initial note of song compared to in the extract of the story? Option, a hymn blowing off a peculiar wind, a low hum, D or E? तो इसका आंसर है A, that is a hymn. ठीक है, ओके. जो कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन है ना, इसमें अब मैं ऑप्शंस नहीं बोलती हूँ, सीधे आंसर बता देती हूँ, क्योंकि एट द एंड आपको ऊपर से ढूंढना ही है सारे. ठीक, तो चलिए, पिक अप एन इक्विवेलेंट ऑफ द वर्ड कैडेंस और रिदम फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट ऑफ द स्टोरी. ऑप्शन, हम, लिल, ट्यून, D और E? So the answer is B, that is lilt. ठीक है, next is, which phrase in the extract of the story describe the feeling of surprise or astonishment with reference to the storyteller? तो इसका आंसर है C, as though seeing them for the first time. Next question, the narrator seemed out of joint because? देखिए, इसका आंसर होगा C, she was trapped in the dark thoughts. Next question, which phrase in the extract is a close equivalent of pin drop silence? तो इसका आंसर है आपका C, that is I see silence. ठीक है, नहीं, इसका आंसर होगा A, death like silence. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, what made the listener skeptical? तो इसका आंसर होगा C, they could hear nothing. नेक्स्ट, which elemental feeling is most prominent in this story? तो इसका आंसर है B, elegiac. Next, which word in the extract is closest in the meaning of the phrase whips around? तो इसका आंसर है E, none of the above. ठीक है, because none of the listed choices, whirling, hover, blows, see, it mean the turn around quickly, abruptly. तो नहीं है, इसका आंसर है E. नेक्स्ट इज़, वाई इज़ द नरेटर डिस्क्राइब्ड एज चिरपी? ठीक है, तो इसका आंसर है बी, एज शी इज़ चीयरफुल. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेमोरीज डिड द सॉन्ग ब्रिंग बैक टू द नरेटर एंड द लिसनर्स? सो इसका आंसर है डी, मोर देन वन ऑफ द अबव. इट कवर्स बोथ द एनिवर्सरी ऑफ द ब्लैक संडे एंड द आर्मी एट्रॉसिटी और ट्रेजिडी, है ना. चलिए, नेक्स्ट इज, वाई इज़ द पर्टिकुलर डे रेफर्ड टू एज द ब्लैक संडे? सो द आंसर अगेन इज डी, मोर देन वन ऑफ द अबव, because it refers to both the death of Apano and army atrocities, and of course the army atrocities suffered on that Sunday. Next question, why do you think the narrator squats on the bare earth? So the answer is C, that it was a common way of sitting by the village folk of Nagaland. ठीक है, इसी के साथ कॉम्प्रीहेंशन ख़त्म होता है. अब थोड़ी ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान देते हैं. थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, जो भी इंग्लिश के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ग्रामर पे ज़्यादा ध्यान दीजिए. 6 to 8 में ग्रामर पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, चाहे वो हिंदी का एग्ज़ाम हो चाहे इंग्लिश का. तो लैंग्वेज है,
तो मेक श्योर कि ग्रामर पे आपका फुल कमांड हो। बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए, सारे आपको हमारे चैनल मॉक टॉक पे मिल जाएंगे। इसके अलावा भी मॉक्स लगाइए, उसके बाद पेपर क्लियर हो जाएगा, फिर कोई रोक नहीं सकता है। मेरा भी हुआ है, आपका भी बहुत ईजीली हो जाएगा, नॉट अ बिग डील। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एन एरर और एरर्स in any underlined parts. If you feel that there is no error in the sentence, write E to signify none of the above. Right? So देख लीजिए, एरर बताना है। डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज बिटवीन ऑल द 50 स्टूडेंट्स, तो अगला मोर देन अबव या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, इसका आंसर है बी। ठीक है, क्योंकि बिटवीन इज यूज्ड फॉर 2 एंटिटीज़ और यहाँ पर बहुत सारे 50 स्टूडेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बिटवीन की जगह अमंग होगा, तो ये है इसका आंसर। राइट, नेक्स्ट देखिए, अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड यू कांट गेट सक्सेस। ठीक है, इसमें गलती बताइए। इसमें होगा गलत जो है वो ए है कि अनलेस ऑलरेडी कैरीज अ नेगेटिव मीनिंग, इफ़ नॉट। राइट, अनलेस का मतलब ही होता है इफ़ नॉट, सो एडिंग डोंट creates a double negative. It should be unless you work hard. ठीक है, don't अगर हटा देंगे तो ये ठीक हो जाएगा, पर इसमें don't लगा हुआ है तो A is the correct answer, इसी में गलती है। अगला देखिए, start early lest you should miss the train, तो इसमें more than one of the above या फिर E, तो इसका आंसर है E, none of the above, क्योंकि ये grammatically correct आंसर है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, he talked as if he was a mad, ऑप्शन डी है या फिर ई है। ठीक है, तो इसका आंसर दिख रहा है, इसका आंसर है सी। हाइपोथेटिकल देखिए, स्टार्टिंग विद एज इफ रिक्वायर वर इंस्टेड ऑफ वॉज। ठीक है, अगर इफ एज इफ वर्ड यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर वर लगेगा, ना कि वॉज लगेगा। ही टॉक्ड as if he were a mad, not he was a mad, तो गलत ये रहेगा, तो सही हमारा आंसर यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई वॉच विच वॉज डैमेज्ड इज नाउ यूजलेस, डी और ई। इसका आंसर अगेन ई है, क्योंकि ये ग्रामेटिकली पूरा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी ought to have obey her parents, डी और ई, तो इसका आंसर है बी, टू हैव ओबे में गलत है। देखिए, द मॉडल कॉन्स्ट्रक्ट ought टू हैव रिक्वायर्स अ पास्ट पार्टिसिपल वर्ब। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल, मेक श्योर, तो इट शुड बी टू हैव ओबेड। ठीक है, ओबे की जगह क्या आएगा, ओबेड आएगा, इसलिए ये गलत है और हमारा सही आंसर भी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू विल गेट वेट इफ़ यू विल गो आउट इन द रेन, डी और ई, तो इसका आंसर होगा बी। यहाँ पे क्या गलती है, देखिए ये कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, जो फ्यूचर टाइम को बता रहा है, तो कंडीशनल क्लॉज, इफ़ क्लॉज स्पेशली, राइट, ये टेक्स द सिंपल प्रेजेंट टेंस इफ़ यू गो आउट। ठीक है, नॉट द फ्यूचर मॉडल दैट इफ़ यू विल गो आउट, इफ़ यू गो आउट, विल हटा देंगे तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ आर माई कंट्री, डी और ई, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे बी और सी दोनों में एरर है। ठीक है, कमेंट में बताइए कि क्या क्या है, ये आसान है इसलिए कमेंट में बताइए, देखते हैं कौन कौन कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीदर यू नॉर ही आर गिल्टी, डी और ई, तो इसका आंसर सी है, बहुत इजी है। व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय नीदर नॉर द वर्ब अग्रीज विद द सब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू इट, तो सिंस ही इज सिंगुलर वर्ब द वर्ब शुड बी इज, नीदर यू नॉर ही इज गिल्टी। ठीक है, नीदर यू नॉर ही इज गिल्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीदर ऑफ द 3 पेन्स विल डू, ऑप्शन या फिर डी या फिर ई, तो नीदर ऑफ द 3 पेन्स विल डू, इसका आंसर है ए, नीदर ऑफ द में गलती है। नीदर इज यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू 2 आइटम्स, राइट, फॉर 3 और मोर आइटम्स नन शुड बी यूज्ड, तो यहाँ पे क्या आएगा, नन ऑफ द 3 पेन्स।
ठीक, नीदर कब लगता है जब दो चीज़ें होती हैं, बट यहाँ पे तीन है तो यहाँ पे नन आएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, शी डैश अलोन इन द सिटी फॉर ऑलमोस्ट अ डेकेड नाउ, यूज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, देखिए पूरा पेपर ग्रामर पे है, कितना इंपॉर्टेंट है ग्रामर आपके लिए, आप समझ सकते हैं अब शायद। तो देखिए क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर होगा बी, हैड बीन लिविंग, यूज्ड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो क्या होगा यहाँ पे, हैड बीन लिविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही फ्लेड वेयर हिज परस्यूअर्स कुड नॉट फॉलो, द अंडरलाइन सेक्शन इज, बताना है आपको क्लॉज इसमें कि कौन सा क्लॉज है। तो इसका आंसर होगा बी, एन एडवर्ब क्लॉज। तो द क्लॉज मॉडिफाइज द वर्ब फ्लेड बाय इंडिकेटिंग द प्लेस लोकेशन ऑफ द एक्शन। ओके ओके, होपफुली आप समझ रहे हो, ग्रामर पे ध्यान दीजिए, इम्पॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द अम्ब्रेला विद द वुडन हैंडल इज माइन, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्लॉज और फ्रेज फॉर द अंडरलाइन पार्ट। बताइए इसका आंसर, देखिए ऑप्शन देख लीजिए, एन एडजेक्टिव क्लॉज, एन एडवर्ब क्लॉज, एन एडवर्ब फ्रेज, डी या फिर ई। तो इसका आंसर है ई, नन ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई हैव सम ड्यूटीज, आई मस्ट परफॉर्म देम, यूज एन इन्फिनेटिव टू जॉइन द सेंटेंस। ऑप्शन, आई मस्ट परफॉर्म द ड्यूटीज दैट आई हैव, I must perform some of the duties that I have some duties to perform, D or E. So the right answer is C, that I have some duties to perform. Next question, he deserved to succeed, he failed. Use an adverb or an adverbial phrase to join the sentences. Option, he deserved to succeed but he failed undeservedly, he failed though he deserved to succeed, D और E। इसके लिए जो आंसर होगा वो होगा B, he failed undeservedly। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, her husband died, she heard the news, she fainted, use a preposition with a noun or gerund to join the sentences। सिर्फ ग्रामर के क्वेश्चन हैं देखिए अभी तक। ऑप्शन देखिए, she fainted when she heard the news of her husband's death, on hearing the news of her husband's death she fainted, as soon as she heard the news of her husband's death she fainted, D or E। So the answer is B, on hearing the news of her husband's death she fainted। Next question, he jumped up, he ran away, use a participle to join the sentences। Option, jumping up he ran away, he jumped up and ran away, he ran away after jumping up, D or E। Very confusing। The answer of this question is A, jumping up he ran away। See, jumping is the present participle used to join the sequential actions। ठीक है, okay। Next is, insert the punctuation marks in the following, she read the short story Coffin and adapted it to a radio play। Option, इसमें ना देखिए पंक्चुएशन लगाना है, कॉमा या क्या क्या लगाना होता है ना, जो कॉमा, फुल स्टॉप, अपॉस्ट्रॉफी, ये सब करना है। ऑप्शन देख लीजिए, पढ़ लीजिए ऑप्शन, जो सही आंसर होगा उसका वो होगा ए, शी रीड द शॉर्ट स्टोरी कफन एंड अडेप्टेड इट टू अ रेडियो प्ले। ओके, बस ये लगाना था। ठीक है, एनक्लोज्ड इन डबल कोटेशन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ही इज़ एट होम आई शैल सी हिम। तो बताइए क्या है, ये एक सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, डी या फिर ई। तो बेटा ये है सी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू मस्ट हरी और यू विल मिस द ट्रेन। सो अगेन इसमें वही काम है, बताना है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो जो ये है वो है बी, कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, इट जॉइंस टू इंडिपेंडेंट मेन क्लॉजेज यूजिंग द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86 to 95। देखिए पढ़िए इसको, क्या लिखा हुआ है पूरे क्वेश्चन को। यू एट फिश इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बताइए क्लॉज है, फ्रेज है, सेंटेंस है, या फिर डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। इट इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस।
ठीक है, एंड ऑल्सो फंक्शन एज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो ये और ये, दैट इज़ वाई हमने इसका ऑप्शन चुना डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द सेंटेंस दैट विच कैन नॉट बी रीड? ऑप्शन इनएलिजिबल, इनएलिजिबल, इनविजिबल, डी और ई। तो इसका आंसर है ए। ठीक है, नेक्स्ट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड स्करिलियस इज स्करिलस, आउटरेजियस, डिसेंट, मॉडरेट, डी और ई। तो इसका आंसर है बी, डिसेंट। अगर मैंने इसको गलत पढ़ा है तो प्लीज़ चेक, हाँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, सो इसका आंसर इज बी, डिसेंट। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई लेफ्ट दैट हाउस, what is the underlined word that according to the English grammar? Option demonstrative pronoun, adverb, noun, D और E। तो इसका आंसर इज E। ठीक है, that modifies the noun house making it a demonstrative adjective, right? So yes, the right answer is demonstrative adjective, ठीक है, not pronoun। That is why इसका आंसर इज E, none of the above। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग इज, सिंक्रोनाइज का बताना है कि कौन सा सही है। तो वो तो देखने से मालूम पड़ जा रहा है, माइज होगा नहीं, है ना, सिंक्रो में ऐसे लगना चाहिए। तो द करेक्ट आंसर इज ए, सिंक्रोनाइज। स्पेलिंग देख लीजिएगा, SYNCHRONIZE। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिसस्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग इज, देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, इसमें क्या गलत है वो बताना है। तो मैं बता दे रही हूँ, इसमें जो ब्यूरोक्रेसी है वो गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पर्सन हु इज़ बैड इन स्पेलिंग इज़ नोन एज, बताइए जो गलत होता है उसको, जिनकी स्पेलिंग गलत होती है उसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है कैकोग्राफिस्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए, द वर्ड मोस्ट नियरली अपोजिट टू द वर्ड opprobrious is। तो देख लीजिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, थोड़ा सा लेवल अच्छा गया है पेपर का, बट ठीक है, तो मार्क्स कट ऑफ भी उसी के अकॉर्डिंग गया होगा। तो नेक्स्ट देखिए, द टर्म क्विनक्वेनियल स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन देखिए, हैपनिंग इन 4 years, हैपनिंग इन 6 years, हैपनिंग इन 7 years, डी या फिर ई। तो इसका आंसर इज ई, नन ऑफ द अबव। वाई नन ऑफ द अबव? बिकॉज क्विनक्वेनियल मीन अकरिंग एवरी 5 years। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए इसका आंसर इज ई, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शन 2 प्रिंसिपल क्लॉजेज, 1 principal clause, 1 principal clause and 1 subordinate clause, D और E। तो इसका आंसर इज A, 2 principal clauses। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रिंस सेड इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू बी हियर दिस इवनिंग, चेंज इनटू रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो ऑप्शन जो भी है इसका पढ़िए, बट द आंसर इज E, नन ऑफ द अबव। ठीक है, कोई भी नहीं बता रहा है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ही इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम वॉज नॉट अहमद, चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच। ऑप्शन देखिए, ही सेड टू हिम इज़ नॉट योर नेम अहमद, ही सेड टू हिम इज़ नॉट योर नेम अहमद, ही सेड टू हिम इज़ योर नेम नॉट अहमद, डी और ई। तो इसका आंसर इज बी, ही सेड टू हिम इज़ नॉट योर नेम अहमद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉट योर इज एंड क्रॉस योर, जो भी है ये, देन एड 2 5s, ओके, टीज, दिस इज टीज, देन एड 2 5s एंड 4 2s, यूज पंक्चुएशन मार्क्स। ठीक है, ये टीज है बेटा, ऐसा। चलिए देख लीजिए, जो इसका राइट आंसर है वो है सी, ये। ठीक है, डॉट योर आईज एंड क्रॉस योर टीज, देन एड 2 5s एंड 4 2s। ओके, नेक्स्ट देखिए, मूनलाइट
is a compound word that is formed by noun plus noun, adjective plus noun, noun plus gerund, D और E. तो इसका आंसर इज ए, noun plus noun. Okay, next 100th question. Red hot is a compound word that is formed by, again देखिए, noun plus noun, adjective plus adjective, noun plus gerund, D और E. तो इसका आंसर इज बी, adjective plus adjective. Next question. He who has suffered most in the cause, let him speak. The correct sentences बताना है आपको कि इसमें करेक्ट क्या है. तो ऑप्शन देखिए, let him who has suffered most in the cause speak, he who has suffered most in the cause should speak, or let him speak as has suffered most in the cause, D or E. The right answer is A, let him who has suffered most in the cause speak. Next question. What a terrible fire this is. Use punctuation mark. Option full stop, exclamation mark, question mark, D or E. The answer is B, exclamation mark. What a terrible fire this is. Okay. Next question देखिए. He broke the glass. Change the underlined word into intransitive verb. Option, the glass was broken, the glass break, the glass broke, D or E. The right answer is C, the glass broke. Next question. I am reading David Copperfield. Point out the sentence used in the underlined part. Option, past continuous, present continuous, future continuous, D or E. The right answer is, sir and ma'am, is B, present continuous. ठीक है. Next question. Why did your brother write such a letter? Change into passive voice. Option, why was such a letter written by your brother? How could such a letter be written by your brother? What made your brother write such a letter? ठीक है. So the right answer is A, why was such a letter written by your brother. Next question देखिए. From 106 to 110, choose the most appropriate meaning of the underlined idioms and phrases. Right? बताना है आप लोगों. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इडियम फ्रेजेस का, लाइक क्वेश्चन नंबर 106 हमारे पूरे पेपर का. अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ठीक है, बहुत फेमस है. ऑप्शन देखिए, सडन कैलेमिटी, अ स्ट्रेंज पर्सन, ब्लू स्काई, डी और ई. द राइट आंसर इज, याद कर लीजिएगा, सडन कैलेमिटी. ठीक है, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स सडन कैलेमिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन. डू अवे विद. ऑप्शन, टू ओबे, to do honestly, to destroy, D or E. The answer is C, to destroy. Next, to cast a slur on, to praise, to blame, to accuse, D or E. The answer is D, more than one of the above, क्योंकि B, to blame, and C, to accuse somewhere means the same, to cast a slur on. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. to be at sea. ऑप्शन, known, confused, false, D और E. तो इसका आंसर होगा बी, दैट इज कन्फ्यूज्ड. टू बी एट सी मीन्स कन्फ्यूज. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ऑलमोस्ट नो टाइम. वेरी इजी ना. ऑप्शन, क्विकली, हार्डली, लेटली. तो द आंसर इज क्विकली, है ना. इन ऑलमोस्ट नो टाइम, क्विकली. नेक्स्ट क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स. देखिए इजी है ये भी, उम्मीद करते हैं आप लोगों के लिए. ही हैज़ बिन इल. ऑप्शन, डैश, ट्यूजडे. ऑप्शन देखिए, फॉर, ऑन, इन. लगा के देखिए. ही हैज़ बिन इल फॉर ट्यूजडे, नो. ही हैज़ बिन इल ऑन ट्यूजडे, अगेन नो. ही हैज़ बिन इल इन ट्यूजडे, अगेन नो. मोस्टली ऑन करेंगे, बट द आंसर इज ई, नन ऑफ द अबव. तो बिकॉज यहाँ पे हैज़ बिन लगा हुआ है, तो यहाँ पे आएगा सिंस. ठीक है, सिंस ट्यूजडे, वो ट्यूजडे से ही बीमार है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. शी राइट्स डैश अ पेन. देखिए, विद अ पेन और बाय या फिर फ्रॉम. तो आंसर इज विद. शी राइट्स विद अ पेन. ओके, ये वाला आंसर है. नेक्स्ट. द कार वॉज रनिंग 40 किलोमीटर पर आवर. तो द कार वॉज रनिंग एट 40 किलोमीटर्स पर आवर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ही डाइड फ्रॉम, ऑफ, विद. Right answer is of. He died of cholera. Next question. There is a river dash my residence. Option, to, at, beside. Answer is C, beside. The river is beside my residence.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ अगेन कॉम्प्रिहेंशन। इसको पॉज करके प्लीज़ पूरी इसको पढ़ लीजिए यहाँ तक कि ये पूरा पढ़ने के बाद हम सीधे क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। द एक्सट्रैक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन फिल्म रिव्यू, समरी, पैराफ्रेज, डी और ई। द आंसर इज ए, फिल्म रिव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, delineate the qualities of a good paragraph. It has to be short, it has to be precise, it has to be to the point, D or E. The right answer is D, more than one of the above. Definitely the B and C is the correct answer. Next question, read the extract given below. Again छोटा कीजिए और अच्छे से पढ़िए, थोड़ा बड़ा है बट अगेन नंबर देगा, अच्छे नंबर देगा और ईजी हो जाते हैं ना ऐसे जब आंसर्स ऊपर दिए ही होते हैं, बस ढूंढना होता है। तो इस ऑप्शन देख लीजिए, अ कन्वर्जन अबव एक्सट्रैक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कन्वर्जन, डायलॉग, मोनोलॉग, डी और ई। द आंसर इज डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। वाई? क्योंकि देखिए ए एंड बी, अ कन्वर्सेशन एंड अ डायलॉग, इस बोथ आर द करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, point out the error in the extract given in question number 118. Use of tenses, use of adverbial clauses, use of prepositions, D or E. The right answer is C, use of preposition. Next question, bought few, ये jumble sentences है, इसको जोड़ के इधर उधर करके बनाना है, ठीक है। इसका आंसर is D, more than one of the above, which is strange. But देखिए ए बी सी सारे जो हैं वो ग्रामेटिकली कोहेरेंट वेरिएशन, रीअरेंजिंग द लिस्ट आइटम। देखिए मेडिसिन, वेजिटेबल, एवोकाडोज, ठीक है। इधर उधर भी करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अ फ्यू, सेवरल, मैनी काइंड ऑफ, राइट, तो सब ठीक है, ठीक है। इसके साथ ही इंग्लिश का पेपर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, हमारे लग रहा है कि हमने कुछ एफर्ट किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी ढेर सारी वीडियोस लाएंगे। ये तो अभी क्लास 6 to 8 की है, इसके बाद हम लोग 9 to 10 की भी लाएंगे और 11 to 12 की भी लाएंगे। तो चाहे आप 6 to 8 दे रहे हैं, 9 to 10 दे रहे हैं, 11 to 12 दे रहे हैं, तीनों का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो भी PYPs आप तीनों के कीजिए ताकि आपका एक अच्छा रिवीजन और अच्छी तैयारी हो पाए। सारा का सारा आपको मिल जाएगा हमारे चैनल, इसी चैनल मॉक टॉक पे। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास इसकी नोटिफिकेशन जाती रहे। थैंक यू ऑल, सी यू टुमारो, बाय बाय।